یہ شاہ حویلی کا منظر تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج وہ پھپھو بن گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹی سی جان کو پکڑ رکھا تھا۔ ویسے آپ لوگوں نے کوئی نام سوچا؟ وہ مسکراتی ہوئی اپنی بھائی اور اپنی جان عزیز دوست کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بچپن کی دوست تھی جو اس کی بابی بنی تھی، اور آج وہ دونوں ایک چھوٹی سی ننھی سی شہزادی کے والدین بن گئے تھے۔ ہاں، میں نے سوچا ہے، رائمہ شاہ کیسا نام ہے؟ زہرا نے مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ بہت اچھا نام ہے۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے بچے کو دوبارہ فریحہ کے ہاتھوں میں تھمایا اور آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکی۔ یہ آج سے میرے دائم کی امانت ہے۔ اس کی بات سنتی فریحہ کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اتنا کیسے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہمیر نے حیران ہوتے فریحہ کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ کی بہن یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی تیار رہنا، تمہاری بیٹی آج سے میری بہو ہے۔ اس کی بات سنتے دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ریاض شاہ کے 2 بیٹے تھے، ارمان شاہ اور سلیمان شاہ۔ ارمان شاہ گاؤں کے سردار تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹی زارا شاہ اور بیٹا شاہمیر شاہ۔ زارا کی شادی سلیمان شاہ کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ سلیمان شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا ازلان شاہ، اور شاہمیر کی شادی اپنی خالہ زاد فریحہ سے ہوئی تھی۔ فریحہ اور زارا بچپن سے دوستیں تھیں اور بالکل بہنوں کی طرح رہتی تھی، اور یہ بات زارا نے پہلے بھی بہت بار کہی تھی کہ اگر اس کے ہاں بھتیجی ہوئی تو اپنے 4 سالہ دائم کے لیے اسے مانگ لے گی، اور واقعی وہ مانگ چکی تھی۔ یہ شاہ حویلی کا منظر تھا۔ 18 سالہ دائم سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو اس نے دیکھا فریحہ لاؤنج میں بیٹھی اس کے پاس ہی رائمہ اور ہائنہ اپنی بکس کھولے پڑھنے میں مصروف تھی۔ رائمہ کو دیکھ دائم کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی ہیزل بلیو آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھری۔ جب دائم 10 سال کا ہوا تو اس دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ رائمہ بالکل اپنی ماں فریحہ کی پرچھائی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ فریحہ کوئی فون کال سنتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو دائم رائمہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ کسی خاص احساس کے تحت 15 سالہ رائمہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو دائم اس کے بالکل پاس بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہیلو مسٹر بلو، کیا حال چال ہے؟ دائم کی نیلی آنکھوں کی وجہ سے وہ اس سے بلو کہتی تھی۔ بالکل خشاش پشا، اسے دیکھ کر جیسے سینے سے سکون کی لہریں اتری تھی۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ پتہ نہیں، یہ سائنس کا ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا۔ رائمہ نے اپنی 10 کلاس کی بک سامنے کی۔ چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دائم فوراً اسے سمجھانے لگا اور رائمہ کو سمجھ بھی آنے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی فریحہ کھل کر مسکرائی تھی۔ بے شک اس کی بیٹی کی قسمت میں ایک بہت اچھا ہمسفر لکھا جا چکا تھا۔ اسے تو دائم پہلے دن سے بہت پسند تھا۔ اب تو اس کا بیٹا اور بیٹی اسے دے چکی تھی۔ دل پر سکون تھا، مگر کون جانتا تھا کہ ان کے رشتوں میں نفرت کے سائے پھیل جائیں گے اور ان کی پاک محبتوں کو حاسدوں کی نظر کھا جائے گی۔ کچھ وقت مزید سرک گیا۔ یہ حویلی کے لاؤنج کا منظر تھا جہاں رائمہ کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رائمہ کی کلاس فیلو اجیا تھی۔ دونوں کی کالج میں فرسٹ ایئر میں دوستی ہوئی تھی اور اب تو رائمہ سیکنڈ ایئر میں آ چکی تھی۔ وہ دونوں شاید اپنے کسی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے جب لاؤنج کے دروازے پر دائم داخل ہوا۔ اجیا کی نظر دائم پر اچانک پڑی، مگر ایسی پڑی پھر پلٹنا بھول گئی۔ اس نے شاید ہی زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت اور ہینڈسم مرد دیکھا تھا۔ اسے ایک ہی پل میں دائم ایسا پسند آیا کہ شاید دل میں ہی بس گیا۔ رومی، یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے رائمہ کو مخاطب کیا۔ رائمہ نے اپنا سر کتابوں سے اٹھا کر دائم کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے پھوپھو کے بیٹے ہیں۔ اس نے اپنا یہ شوہر کہنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ایسا لگتا تھا اگر کسی کو پتہ چلا تو نکاح شدہ ہے تو لڑکیاں اسے تنگ کریں گی۔ اجیا کی تو آنکھیں چمکی۔ یار تمہارے خاندان میں تو تمہارا کزن ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ رائمہ نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، اس لیے ہنس پڑی۔ بس دیکھ لو، پھر شاہ خاندان کے مرد اور خوبصورت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ویسے بھی یہ اپنے پاپا پر گئے ہیں، وہ بھی سارے خاندان میں بہت ہینڈسم تھے۔ آنکھوں کے سامنے ازلان شاہ کا چہرہ گھوما۔ رائمہ کے لہجے میں تفکر تھا۔ دائم اس کے پاس آ چکا تھا۔ اجیا فوراً صوفے سے اٹھی اور دائم کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ہیلو، میں اجیا عباس ہوں، رائمہ کی کلاس فیلو اور بیسٹ فرینڈ۔ اس نے اپنا ہاتھ دائم کے سامنے پھیلایا، مگر دائم کو اس کی یہ بے تکلفی پسند آئی۔ اس نے بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ہیلو، میں دائم ازلان شاہ، رائمہ کا کزن۔ دائم نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اور اجیا کا ہاتھ ویسے ہی خالی رہ گیا۔ اس نے بھی رسمی تعارف کروایا، پھر ایک مسکراہٹ رائمہ پہ اچھال کے وہ چلا گیا تو اجیا کلس کر رہ گئی۔ وہ اتنے امیر خاندان سے تھی، اس کا باپ ڈیفینس کے بنگلے میں رہتا تھا۔ وہ پہلی بار گاؤں آئی تھی اور اکثر رائمہ سے گاؤں کی خوبصورتی سنتی رہتی تھی، اس لیے آج وہ گاؤں آ ہی گئی تھی۔ اسے دائم کا اس طرح خود کو اگنور کیے جانا پسند نہ آیا۔ وہ کافی اسٹائلش تھی، 18 سال کی عمر میں ہی کافی خوبصورت تھی۔ لڑکے اجیا عباس پر مرتے تھے، مگر دائم نے اسے ایسا اگنور کیا جیسے وہ کوئی عام سی لڑکی ہو۔ ہاں، دائم ازلان شاہ کے لیے ہر لڑکی عام ہی تھی کیونکہ صرف اسے ایک لڑکی خاص لگتی تھی اور وہ تھی رائمہ دائم شاہ۔ اس نے کبھی کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر دائم کی پشت پر ڈالی
जो सीढ़ियों के धाने पर जाकर गायब हो चुका था। तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, ये अजिया बास का वादा है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। राइमा इन सबसे बेखबर अपनी पढ़ाई कर रही थी। उस दिन के बाद से उसने बहुत कोशिश की वो दाइम का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जा करे, लेकिन दाइम भी शाह खानदान का खून था। किसी गैर औरत की तरफ देखने को गवारा नहीं था। और जिया काफ़ी अरसे कोशिश करती रही, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। दाइम उसे घास नहीं डालता था, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी। वो सोच चुकी थी दाइम को अपना बना कर रहेगी। पूरे 4 साल गुजर गए, लेकिन अजिया अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। 4 सालों से वह हवेली जा रही थी, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये असर का वक्त था जब अजिया हवेली में दाखिल हुई। राइमा रौंज में ही मौजूद थी। वो हैरत से देख रही थी सारी मुलाजमें किसी कामों में लगी हुई हैं। वो राइमा के पास आई, उसके गले लगी। उसके बाद हैरत से उसके पास देखा। रोमी, ये क्या हो रहा है? कोई ख़ास फंक्शन है क्या? उसने काफ़ी तजस्सुस से पूछा। हाँ, जमान लल्ला और अनाया आपी की शादी हो रही है। अनाया दाइम की बहन थी और जमान सलेमान साहब के चचाजाद का पोता था, जो शाह खानदान के एक ही चश्मो चराग था। राइमा ने कंधे झुकाकर मुस्कुराकर जवाब दिया और अजिया को खुशगवार हैरत हुई। वाह नाइस, और तूने मुझे बताया भी नहीं। वैसे मुझे शादी में इनवाइट करोगी ना? उसने दोनों हाथ कमर पर रखे लड़ाका औरतों की तरह जहाँ पूछा। राइमा हंस पड़ी और मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, तुम ही तो मेरी एक दोस्त हो। तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? अजिया ने सर हिलाया। कुछ देर बाद अपनी मुतलाशी नजरें सारी हवेली में घुमाने लगी। उसकी आंखें दाइम को तलाश कर रही थी। अचानक राइमा ने उसे देखा। क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो? अचानक अपने कान के पास आने वाली आवाज़ से अजिया कुछ गड़बड़ाई। उसके चेहरे पर भी खौफ के तासुरात नमाया हुए। कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आसपास देख रही थी। अजिया ने जल्दी से बहाना गढ़ा। इतने में तेजी से दाइम सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। उसे देखकर अजिया की आंखों चमकी और काफ़ी तेज़ी में था। जल्दी से राइमा के पास आया। अजिया, जिसे दाइम को देख लेने की अभी सही से खुशी भी नहीं हुई थी, उसकी आंखों ने देखा कि दाइम के हाथों में राइमा का हाथ आ चुका था। मियाँ जल्दी चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। वो इसे प्यार से ही कहता था। काफ़ी जल्दी में था, जैसे सांस फूट चुका हो। क्या हुआ, क्या दिखाना है? राइमा कुछ हैरान हुई। अरे यार चलो तो सही, फिर दिखाता हूँ। फ़ौरन उसका हाथ पकड़े वापस सीढ़ियाँ चढ़ गया और अजिया की आंखों ने यह मंजर नफरत से देखा। उसे याद आया, दाइम ने तो उसे हाथ तक नहीं मिलाया था और किस तरह राइमा का हाथ पकड़ रखा था। उसे एक ही पल में राइमा से इतनी नफरत हुई कि कोई हद नहीं। वो ये भी भूल गई कि राइमा इसकी बेहतरीन दोस्त है। वो दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। राइमा कितनी ही देर उलझी निगाहों से दाइम का बिहेवियर देख रही थी। वो इसे ज़ारा के कमरे में लाया। उस कमरे में आने के बाद बहुत सारी यादें थी जो राइमा की आंखों के सामने घूमी। जब दाइम 10 साल का था तो एक एक्सीडेंट में ज़ारा और इस्लाम की डेथ हो गई थी। उन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद दाइम और अनाया को इस सूरत हाल से बाहर निकाला था। दोनों बहुत टूट गए थे। वो दोनों ही जुड़वा थे। बहुत अरसा लगा दाइम को इस सूरत हाल से बाहर निकलते, तब कहीं जाकर नॉर्मल हुआ था। राइमा का हाथ छोड़कर वो ड्रेसिंग में चला गया। जब बाहर निकला तो उसके हाथ में बहुत खूबसूरत मेहरून रंग की कामदार फ्रॉक थी। ये देखो, ये मामा की है। और राइमा, जिसकी आंखों में उलझन थी, उसकी आंखें चमकी। वाह, ये कितनी खूबसूरत है। वो फ़ौरन उस फ्रॉक तक आई और उस फ्रॉक को छू कर महसूस कर रही थी। मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो। और राइमा ने बेहद हैरत और बेयकीनी से दाइम का चेहरा देखा, जिस पर बच्चों जैसी खुशी थी। तुम ना शादी करने वाले दिन ये पहनना। वो चाहता था उसकी बीवी उसकी बहन की शादी में उसकी माँ का ड्रेस पहने। उससे ज़्यादा बेहतरीन मर्द दुनिया में कोई हो सकता है? राइमा बस ये सोच कर रह गई। ये सब सोचते हुए कब इसकी आंखें नम हुई उसे एहसास ना हुआ। तुम पहनोगी ना? राइमा की खामोशी महसूस करते दाइम ने तरदीद चाही। या शायद उसे डर था कि कहीं राइमा इतनी पुरानी ओल्ड फैशन फ्रॉक कहकर इसे पहनने से मना न करते। राइमा ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। ये मेरे लिए दुनिया का बेहतरीन लिबास है, मैं ये ज़रूर पहनूंगी। नम लहजे में कहते उसने दाइम का मान बढ़ा दिया। वो बेसाख्ता आगे बढ़ी और इसके साथ लग गई और दाइम को ढेरों सुकून मिला। क्या बस ये एक ही है? और नहीं, उसने नम आंखों से फरमाइश की और दाइम इस बार हंस पड़ा। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी अनाया का हक है, इसलिए मैंने उसके लिए छोड़ दी। मुझे ये प्यारी लगी, इसलिए मैंने ये निकाल ली। चलो ट्राई तो करो। और राइमा ने हैरत से अपना चेहरा उठाए उसे देखा। क्या अभी? दाइम ने सर हिलाया। हाँ अभी। राइमा ने 2 पल उस मेहरून फ्रॉक को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। फिर उसे पकड़ कर वॉशरूम में चली गई। दाइम बेचैनी से वहीं चक्कर काट रहा था। वो देखना चाहता था कि राइमा इस ड्रेस में कैसी लगती है। कुछ ही देर गुजरी जब वो वॉशरूम से बाहर निकली। दाइम ने चेहरा उठाया और उसे देखा। वो फ्रॉक नुमा मैक्सी थी जो उसके पैरों को छू रही थी। उसका गला घेर था। पैरों से होती नज़र ऊपर उठती उठती उसके चेहरे तक गई और मैक्सी उस पर इतनी खिल रही थी कि दाइम में पल के चुप करना भूल गया। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने ज़ारा शाह का चेहरा घूमने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने ज़ारा खड़ी हो। उसने बहुत मुश्किल से अपने मन कदम उठाए और उस तक पहुंचा।
वो चेहरा झुकाए अपनी मुस्कुराहट छुपा रही थी। वो नहीं जानती थी वो उस मैक्सी में कैसी लग रही है, लेकिन वो उस पर जज रही थी। दाइम ने एक ही लम्हे में उसे आसार में लिया। राइमा का हाथ उठा और उसने दाइम के सीने पर रखा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम कितनी हसीन लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत अरसे बाद तुम्हारी शक्ल में अपनी माँ को दिख रहा हूँ। जब उन्हें देखता था तुम याद नहीं आती थी, लेकिन तुम्हें देखता हूँ तो वो ज़रूर याद आती हैं। दाइम की आवाज़ में नमी गिरी। राइमा उसके जज्बात समझ सकती थी। उसने आहिस्ता से झुककर अकीदत से राइमा के माथे पर लब रखे। राइमा ने बेसाख्ता आंखें बंद की। उस इज्जत भरे लम्स को इजहार की तरह महसूस करना चाहा। उसकी बंद आंखें देखकर दाइम खिल खोल कर मुस्कुराया, फिर उसके कान के पास झुका। तुम मेरे लिए मेरी आधी दुनिया हो, तुम मेरा सुकून हो, और ये सुकून दाइम अजलान शाह को दिलो जान से अजीज़ है। उसकी मोहब्बत भरी सरगोशी पर राइमा के दिल ने एक बैट मिस की। उसके गाल गुलाबी हुए, वो ब्लश कर रही थी, और दाइम ने बहुत महफूज होते ये मंजर देखा। वो बेखुद सा हो रहा था, दिल अलग ही ले पर धड़क रहा था। खुद को रोकने की नाकाम कोशिश करते बल आखिर दिल की बात पर अमल करते उसके चेहरे पर झुका। राइमा ने सख्ती से आंखें मीच ली, क्योंकि अपने चेहरे पर दाइम की बियर्ड की चुभन महसूस कर सकती थी। नरमी से उसकी गुदार लबों की नाज की महसूस करते वो फौरन पीछे हुआ, और राइमा का हाल तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। वो सर से लेकर पाँव तक सुरख पड़ गई। हिम्मत ना हो सकी चेहरा उठाकर दाइम को देखती। दाइम ने अपना दूसरा बाजू भी खोला और उसे मजबूती से अपने सीने में समा लिया, अपनी ठोड़ी उसके सर पर टका दी। थैंक यू सो मच, तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी मामा की ड्रेस को वैल्यू देने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारी समझ ने बता दिया कि तुम्हारे लिए मेरी ख्वाहिश कितनी खास है। आज मुझे यकीन हो गया, मेरी मामा ने मेरे लिए एक हीरा तलाशा है। उसके अल्फाज थे कि सुकून जो राइमा को मान का एहसास हुआ। मेरे लिए हर चीज़ से पहले आपकी ख्वाहिश आपकी खुशी है। मैंने तो फुप्पो और मामा से भी सीखा है कि शौहर की खुशी सबसे पहले, बाकी सब की बात है, और बेहतरीन है वो बीवी जो अपने शौहर के रंग में ढल जाए। दाइम ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें कर रही थी। काफ़ी समझदार होगी, मुझे तो लगता था काफ़ी बड़ी भी हो गई। दाइम ने उसका सरता पैर जायजा लिया। वो वाकई उस मैक्सी में अपनी उम्र से ज़्यादा कुछ बड़ी लग रही थी। उसकी उम्र 21 साल थी। उसने हैरानी से दाइम को देखा। मैं क्या सोच रहा हूँ, हम भी शादी करवा लेते हैं, मौका अच्छा है। दाइम के लहजे में शरारत थी। राइमा का चेहरा तेज़ी से सुर्ख हुआ। उसने एक मुक्का दाइम के सीने पर दे मारा। मुझे नहीं करनी अभी शादी, पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। गुस्से से नाक सुर्ख हो रही थी। उसके इतने क्यूट फेस को देख दाइम का कहका सारे कमरे में गूंजा, और राइमा का बस न चला वो यहाँ से भाग जाए। रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था। दाइम ने फ़ौरन उसे रिलैक्स करना चाहा। उससे पहले दाइम दोबारा उसके चेहरे पर झुकता अचानक कानों के पर्दे फाड़ती आवाज़ आई, रोमी रोमी कहाँ चली गई हो। वो अजिया थी जो उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी, और राइमा 1 मिनट से पहले दाइम से दूर हुई। दाइम के चेहरे पर बेजारियत छाई, जैसे उसे अजिया का यहाँ आना नागवार गुजरा हो। वो कमरे के बाहर ही थी। जैसे ही राइमा दाइम से कुछ दूर हुई, वो कमरे में दाखिल हुई। शायद वो किसी नौकरानी से पूछ चुकी थी कि राइमा कहाँ है। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें सारी हवेली में ढूंढ रही थी। बात करते साथ उसका ध्यान दाइम की तरफ गया, जिसकी आंखों में कुछ गुस्सा था। उसने हैरत से राइमा को उस मेरून मैक्सी में देखा। वाह, ये कितनी खूबसूरत है, ये कहाँ से आई। उसने जैसे मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन राइमा और दाइम का संजीदा चेहरा देख वो भी फ़ौरन संजीदा हुई। यकीनन दाइम का मूड बहुत बेजार हो चुका था। मेरा मतलब था, तुम ये कहाँ से ली, ये बहुत खूबसूरत है। उस ताइश से उस मैक्सी को देख रही थी। है ना बहुत प्यारी, ये मेरी फुप्पो की है, और देखो मुझे कितनी फिट आई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए ही बनाई गई हो। राइमा कदम कदम चलती शीशे के सामने आकर खड़ी हुई, और फिर हर एंगल से खुद को शीशे में देखने लगी। हाँ, लेकिन तुमने क्यों पहनी है। अजिया को जैसे हैरत हुई। क्योंकि आज से मेरी है। राइमा ने एक नज़र मुस्कुराकर दाइम को देखा, और उसकी आंखों में मान था, जिसे पूछ रही है आज से मेरी हुई ना। और दाइम ने मुस्कुराहट जब्त करते आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल, आज से मेरी मामा का ये ड्रेस हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। दाइम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी ओशन ब्लू आंखों में चमक थी, जो अजिया बहुत गौर से देख सकती थी। वो बहुत ख़ास और गहरी नज़रों से राइमा को दिख रहा था, और उसकी नज़रों में से अजिया के अंदर हसद की शदीद लहर उतरी। चलो राइमा, नीचे चलते हैं। उसने अपना गुस्सा काबू करते राइमा को पुकारा। उसकी आवाज़ से उन दोनों की नज़रों का सांस टूटा। हाँ, मैं ये चेंज करके आती हूँ। ये कहते हुए फ़ौरन वॉशरूम में चली गई, और दाइम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। अजिया जब्त से उसकी पुश्त को तकती रह गई। 2 मिनट बाद राइमा सिंपल ड्रेस में बाहर निकली, और फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गई। मगर कमरे में मस्बत के साथ मुनफी वाइब्स भी मौजूद थी। वलीमे का फंक्शन अपने अरूज पर था। वो लोग शहर के सबसे बड़े हॉल में इस वक्त मौजूद थे, और सारे ही आज एक से बढ़कर एक लग रहे थे। दाइमा ने राइमा को ढूंढना चाहा, जो दूर खड़ी फ्रीहा से कोई बात कर रही थी,
शायद प्रिया इसे किसी औरत से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। वो फौरन इन दोनों के पास पहुंचा। हाँ, इससे मिलो, ये है मेरा दामाद राहिम, यही हमारी ज़ारा का बेटा है। उसने सामने वाली औरत से दाइम का तारुफ करवाया तो दाइम ने भी सलाम किया। माशाल्लाह, तुम्हारा दामाद तो बहुत खूबसूरत है। वो शायद प्रिया की कोई जानने वाली थी तो प्रिया मुस्कुरा दी। मियाँ, मेरी बात सुनना। उसने राइमा को मुखातिब किया। मैं अभी आती हूँ मामा। राइमा फ़ौरन प्रिया से माजरत करते हुए दाइम के साथ आ गई। वो दोनों एक साइड पर आकर खड़े हुए। डांस करें? दाइम ने उसके पास कान के पास झुकते हुए सरगोशी की कि राइमा ने हैरत से आसपास देखा। इतने सारे मेहमानों के दरमियान डांस करना इसे ऑकवर्ड लग रहा था। उसने बेयकीनी से दाइम को देखा, फिर फ़ौरन नफ़ी से सर हिलाया। वो इतने सारे लोगों के दरमियान हरगिज़ भी डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन दाइम के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। अरे चलो तो सही, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो राइमा का हाथ पकड़े उसे स्टेज पर ले गया और राइमा परेशान थी। उसे कम से कम दाइम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दाइम उसके पास ही खड़ा था। फिर उसने माइक पकड़ा। हेलो एवरीवन। उसने सारे हाल की अटेंशन अपनी तरफ मुतवज्जा की। सबने ही दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा, जिस तरफ से 15 साल दाइम की आवाज़ आई थी। आज मैं आप लोगों को बहुत अहम बात बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ सारे इस तरफ मुतवज्जा हो जाए। सबने बेयकीनी से दाइम को देखा, जिसकी आंखें चमक रही थी, और राइमा बेयकीनी से उसे देख रही थी, जिसकी होंठों की मुस्कुराहट आज कुछ अलग ही ले पड़ती। जैसे कि सब जानते हैं, मैं डॉक्टर दाइम अजलान शाह हूँ। वैसे तो मैं किसी भी किस्म की तारीफ़ का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप सबको बता रहा हूँ। दाइम ने मजाकिया लहजे में कहा तो सब हंस पड़े। अनाया भी एक साइड पर खड़ी जमान के साथ खड़ी दाइम को दिलचस्पी से दिख रही थी। आज तो हवेली से एक से बढ़कर एक बेटी खूबसूरत लग रही थी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग मेरी शहजादी के वलीमे के इकट्ठे हुए, तो काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे, सबके माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि भाई दाइम ने शादी क्यों नहीं की। और शादी के जिक्र पर राइमा का चेहरा सुर्ख पड़ा। न जाने वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो हाजरीन में से एक ने कह ही दिया, हाँ भी बताओ, तुमने क्यों नहीं की शादी? क्या कोई प्यार व्यार का चक्कर है? एक दूसरी आवाज़ आई तो दाइम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। प्यार व्यार का तो पता नहीं भाई, लेकिन एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत लगती है। उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। उसके बाद मैंने दुनिया की खूबसूरती देखना छोड़ दी। मेरे लिए वो मेरी आधी दुनिया है, और आज मैं सबके सामने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। दाइम का इतना कहना था कि सारे एक पल के लिए खामोश हो गए, और उस मजमे में खड़ी अजिया के चेहरे का एक रंग आ रहा था और एक चाह रहा था। वो बेयकीनी से राइमा को दिख रही थी, जो अपना चेहरा झुकाए अपनी शर्म काबू करने की कोशिश कर रही थी। दाइम ने माइक को जमान की तरफ फेंका और जमान ने फ़ौरन उसे कैच कर लिया। उसके बाद दाइम ने अपनी जेब से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। वो रिंग केस था। सब ने देखा कि दाइम अजलान शाह घुटनों की बल राइमा के सामने बैठा। फिर उसने रिंग केस खोलकर उसमें से अंगूठी बाहर निकाली और राइमा के सामने हाथ फैलाया। आज मैं सारी दुनिया के सामने ये एतराफ़ कर लेना चाहता हूँ, आई एम इन लव विथ यू राइमा शाहमीर शाह। आई एम इन डीपली मैड फॉर यू, विल यू मैरी मी? उसने किस कदर जज्बात से बोझल लहजे में कहा था कि सारे उसे देखने लगे, यहाँ तक कि राइमा की आंखों में नमी चमकी और उसकी आंखें खुशी के तासुर से भीग गई। वो अपना हाथ फैलाए राइमा का हाथ मांग रहा था। राइमा ने बहुत मुश्किल से चेहरा उठाए ऊपर देखा तो कुछ फासले पर ही सारा ख़ानदान खड़ा था। उसकी नज़र सबसे पहले अपने बाप पड़ गई, जो इस बात में सर हिला रहे थे। उसके बाद उसने अपनी माँ को देखा। फ्रीहा की आंखों में दाइम के लिए यकीनन इज्जत आई थी। वो सारे ख़ानदान के सामने उनकी बेटी को खुले दिल से अपना रहा था। बेशक वो इसकी बीवी थी, लेकिन फिर भी उसकी मर्जी जानने के बाद उससे शादी करने वाला था। राइमा की आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे और फिर गालों पर फिसल गए। उसने दाइम को देखा, जो अपना हाथ फैलाए अब तक राइमा का मुंतज़िर था। फिर राइमा ने एक लंबी गहरी सांस ली, एक पुरसुकून सांस, जिस सांस में बहुत ज़्यादा सुकून हो, जैसे सारी दुनिया की खुशी इस सांस में हो समा गई हो। और उसके बाद उसने अपना कपकपाता हाथ उठाया और दाइम के हाथ पर रख दिया, और हर तरफ हॉल में हूटिंग तालियों की गूंज उठी। और अगले ही पल दाइम ने उसके हाथ की तीसरी उंगली में डायमंड की एक नाजुक सी और नफीस सी अंगूठी पहना थी। राइमा ने उससे एक अंगूठी मांगी थी, और राइमा को उम्मीद नहीं थी कि उसे उस तरीके से अंगूठी देगा। उसने उस तरीके से अंगूठी दी थी कि राइमा को मज़ीद मान बख्श दिया था। अगले ही पल
वो ज़मीन से उठा, राइमा के दोनों हाथ पकड़े, उसके बाद उसे गोल गोल घुमाने लगा और उसके साथ मदम सा डांस कर रहा था। राइमा मुकम्मल तौर पर उसके इशारे में खड़ी थी और बाल आखिर खुल कर हंस कर मुस्कुराती। वो इतनी कन्फ्यूज हो गई थी, मुस्कुराना भी भूल गई, लेकिन अब पूरे दिल से मुस्कुराई थी। उसे दाइम से इस कदर और खूबसूरत इजहार की तवक्का नहीं थी। उसकी कान के पास झुका, तुमने एक अंगूठी की फरमाइश की थी, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट तरीके से तुम्हारी फरमाइश पूरी करनी चाहिए। कुछ पहले से ही जमान ने अनाया को एक रिंग गिफ्ट की थी। तब उन्हें देखते उसने दाइम से अंगूठी की फरमाइश की थी कि उसे भी उस तरह की एक रिंग चाहिए, लेकिन वो सिर्फ दाइम से ही रहना चाहती थी। राइमा को दाइम के लब अपने कान पर महसूस हुए और इसके कान में सरखोशी कर क्या था, और इस बार राइमा ने अपनी हंसी जब्त नहीं कर पाई और खुलकर खुश हुई थी। थैंक यू सो मच, आपको पता है अब बहुत बहुत अच्छे हैं। उसका जैसे दिल अंदर तक मशरूर हो गया था। देख लो, फिर तुम्हारा ही हूँ, इसलिए अच्छा हो। बाकी दुनिया के साथ मेरा एक अलग रवैया है, लेकिन दाइम शाह का ये सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ तुम्हारे लिए अवेलेबल है मेरी जान। इतना कहते साथ उसके बाएं गाल पर इस तरह से लब रख गया कि कोई देख ना पाया, लेकिन रायमा शर्म से सुरख पड़ गई। अगले ही पल उसने दाइम के बाजू में एक मुक्का दे मारा। बहुत बुरे हैं आप। एक पल के लिए उसके जज्बात बदल गए, उसे गुस्सा आया और दाइम का कहका बेसाख्ता गूंजा, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अब मैं बुरा बन गया। वो आंखें दबाता रायमा को जानबूझकर परेशान कर रहा था, लेकिन रायमा का रोतो सा चेहरा देखते उसने फ़ौरन अपने कान पकड़ लिए। अच्छा मेरी जान, सॉरी। वो मासूम बच्चा बन गया तो रायमा खुलकर मुस्कुराई थी और कुछ देर फासले पर खड़ी अजिया उन दोनों के इतने करीब दिखती जैसे गुस्से से आग बगोला होगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रायमा, तुम्हें मेरे और राइम के दरमियान नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं जानती, एक बार जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए फिर मैं इसे हर हाल में ले लेती हूँ। बहुत मोहब्बत रही है ना तुम्हें इस दाइम से, देखना एक दिन तुम इसी दाइम से नफरत करोगी। अगर मैंने तुम्हें दाइम से नफरत करने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी अजिया अब्बास नहीं। अपने हाथ की मुट्ठियाँ भींचती हुई कदम पीछे लेती, फिर गुस्से से हॉल से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने पूरी कुव्वत से अपने हाथ का मुक्का बनाकर गाड़ी के बॉन्ड पर दे मारा। उसे रह रह के दाइम और राइमा के वो मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। किस तरह वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा इतने सारे लोगों के दरमियान उसे प्रपोज कर रहा था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते दाइम, मैं पागलों की तरह तुम्हें चाहती हूँ। और तुम कैसे उस राइमा को हो सकते हो? आखिर ऐसा क्या है उस राइमा में जो मुझ में नहीं है? देखो तो सही, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, उससे ज़्यादा तुम्हारा दिल खुश कर सकती हूँ। तो मैं हर हाल में उस राइमा से दूर कर दूंगी, वरना मेरा नाम भी अजिया नहीं। एक बार फिर वो पूरी शिद्दत से चिल्लाती हुई गाड़ी में बैठी और गाड़ी को मैरिज हॉल से बाहर निकाल लाई। उससे ज़्यादा वो इन दोनों को एक साथ नहीं देख पा रही थी। ये शहर के डिफेंस एरिया का मंजर था, जहाँ बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत बंगले बनाए गए थे। हर बंगला एक से बढ़कर एक खूबसूरत था। रात कुछ मजीद सड़की, जहाँ कुछ लोग पुरसुकून होकर सो रहे थे, वहीं कोई बेसुकून भी था। वो गुस्से से कमरे में चक्कर पे चक्कर काट रही थी। एक पल के लिए भी सुकून नसीब नहीं हो रहा था। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई लड़का अंदर दाखिल हुआ। इतनी रात हो गई, तुम जाग क्यों रही हो अजिया? नरमी से सवाल पूछा गया। अजिया पलटी तो इसका चेहरा वाजिया हुआ। उसके चेहरे के उड़े रंग देखते हुए काशिफ परेशान हुआ। काशिफ अजिया का फर्स्ट कज़न था और इसकी फूफो का बेटा भी। वो इसके सामने बेड पर आकर बैठ गया, लेकिन अजिया अब तक गुस्से से टहल रही थी। क्या हो गया, क्यों परेशान हो? उसके चेहरे पर छाई परेशानी देख चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है काशिफ, मैं बता नहीं सकती। अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींधकर वो गुस्से को काबू करती उसके सामने ही सोफे पर बैठ गई। क्या बात है, क्यों परेशान हो, मुझे बताओ, कोई मसला तो हम हल कर लेते हैं। वो पुरसुकून था। कुछ पल के लिए अजिया उसके चेहरे को देखती रही, उसे जांचती नज़रों से दिख रही थी और सोच रही थी कि उसे बताए या ना बताए। क्या तुम मेरा हर मसला हल कर दोगे? उसने जैसे तरदीद चाही। काशिफ ने इस बात में सर हिलाया था। तुम हुक्म तो करो, आखिर पता तो चले किसने हमारी अजिया को परेशान किया है। वो नरम सी मुस्कुराहट के संग बोला था। वो फ़ौरन सोफे से उठी और उसके सामने बेड पर बैठ गई और उसे सारी बात बता चुकी थी। काशिफ बहुत गौर से उस मामले पर सोच रहा था। कुछ देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हुआ। अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हें वो दाइम चाहिए? उसने सवालिया नज़रों से अजिया को देखा जो नफ़ी में सर हिला रही थी। मुझे वो दाइम शाह चाहिए, लेकिन उस तरह चाहिए कि वो राइमा खुद उसे मेरे हवाले करे। उसकी अजीब सी फरमाइश पर काशिफ कुछ हैरान हुआ। क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो।
वो उसकी पहेलियों में की गई बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। मैं चाहती हूँ कि वो राइमा उस दाइम से इतनी नफरत करे कि उसकी शक्ल तक ना दिखे। मुझे उन दोनों को एक दूसरे के इतना खिलाफ करना है कि उन दोनों का एक दूसरे से एतबार उठ जाए। अजिया के लहजे में आग से ज़्यादा तपिश थी कि काशिफ उसे देख कर रह गया। और तुम इन्हें अलग करने के बारे में क्या सोच रखती हो? जैसे वो जानता था कि अजिया के दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई खराफाती सोच चल ही रही होगी। उस सवाल पर अजिया के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरे दिमाग में एक प्लान तो है, लेकिन उस पर मैं अकेले काम नहीं कर सकती। तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसने काशिफ के सामने अपना हाथ फैलाया। क्या मेरी मदद करोगे? काशिफ ने एक नज़र उसे देखा, अगली नज़र उसके हाथ पर डाली, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन ये तो बताओ, मदद कैसी चाहिए? वो भी मुतजस्सिस हुआ। ये जो गांव में रहने वाली सो कॉल्ड लड़कियां होती हैं ना, इन्हें अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। तो अगर क्या हो कि दाइम शाही इसकी इज्जत को तार तार कर दे? वो आंखों में शैतानी चमकनी खुलकर मुस्कुराई थी। काशिफ को उसकी आधी अधूरी बात तो समझ आ गई थी। अच्छा, और उससे क्या होगा? वो जैसे रिजल्ट जानना चाहता था। यकीनन अजिया के खराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। उसने बहुत मान से कहा था कि दाइम उससे मोहब्बत करता है। बस हमें यह साबित करना है कि दाइम उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ उसके जिस्म से मोहब्बत करता है। क्योंकि इन जैसी गांव की सो कॉल्ड लड़कियों को मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत अजीज़ होती है। और जब उससे मोहब्बत करने वाला है वो इसकी इज्जत के साथ खेलेगा तो सारी ज़िंदगी उस शख्स से नफरत करेगी। वो कभी भी दाइम की शक्ल नहीं देखेगी। मैं उस लड़की को सज़ा देना चाहती हूँ उस बात की। उसने मुझसे मेरी पसंदीदा चीज़ छीनी है। मैं उससे वही चीज़ छीन लूँगी जो उससे सबसे ज़्यादा अजीज़ होगी। और राइमा को अपनी इज्जत से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं, मोहब्बत भी नहीं। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वो एक लड़की होती है, उस जालिम एक सफाक दरिंदा लग रही थी। काशिफ महज उसे देख कर रह गया। वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है? मेरे पास एक प्लान है, उस पर अमल करने के लिए एक आइडिया है। अब वो अपना प्लान काशिफ को समझा रही थी, जो बहुत गौर से सुन रहा था। और रात अपने साथ एक और बुराई को जज़ब कर रही थी। इसीलिए कहा गया है कि रात की शर से डरो, क्योंकि गुनाह अक्सर रातों में किए जाते हैं। हवेली में एक नई सुबह उतर चुकी थी। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी जब उसकी नज़र अपने हाथ में मौजूद उस अंगूठी पर पड़ी। होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट नमूदार हुई। आंखों के सामने एक बार फिर कल का मंजर नुमाया हुआ, जब सारे ख़ानदान के सामने ताइम ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते उस नफीस अंगूठी को उसके हाथ की जीनत बनाया था। और आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ गया हो। अचानक कमरे में बजती मोबाइल फ़ोन की घंटी से वो होश में आई। अपनी सोचों से बाहर निकली तो मोबाइल फ़ोन बेड से उठाकर देखा तो अजिया की कॉल आ रही थी। राइमा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन कान से लगाया। हाय रोमी, कैसी हो? दूसरी तरफ अजिया की सरशार आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो बात करते दोबारा शीशे के सामने आकर खड़ी हुई और अब खुद को हर एंगल से देख रही थी। मैं भी ठीक हूँ। असल में तुम्हें ज़रूरी बात बतानी थी। अजिया का लहजा पूर्ण इसरार हुआ था कि राइमा कुछ हैरान हुई। कैसी बात? राइमा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी। अरे यार, आज मेरी सालगिरह है और मेरी बर्थडे की खुशी में हमारे फार्म हाउस पर पार्टी है और तुम भी आज रात आ रही हो। कोई बहाना नहीं चलेगा। अजिया की बात पर राइमा एकदम सी अजीब सी कैफियत में शिकार हो गई। लेकिन इतनी रात को पार्टी होगी, मैं कैसे आ सकती हूँ? उसने फ़ौरन मना करना ही मुनासिब समझा। लेकिन अजिया को तो उसे हर हाल में अपनी पार्टी में बुलाना ही बुलाना था। तभी तो वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली थी। देखो रोमी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम्हारा कज़न हॉस्पिटल में ही जॉब करता है ना, उसकी रात लेट नाइट ड्यूटी होती है। तो तुम ही ने तो मुझे बताया था कि उसे कहना तुम्हें वापसी पर मेरे फार्म हाउस से पिक कर ले। और कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें, आना ही पड़ेगा। फिक्र मत करो, सिर्फ गर्ल्स पार्टी होगी। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि राइमा को यकीन दिलाए और उसे आने के लिए मनाए। अच्छा ठीक है, मैं मम्मा से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। राइमा की बात पर अजय ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया। क्या तुम छोटी बच्ची हो जो हर बात मामा से पूछोगी और तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? हम दोस्त ही तो होंगे। एक बार फिर अजय ने मीठी चुरी बनना चाहा और सदा की मासूम राइमा फ़ौरन उसकी बातों में आ गई। कौन जानता था कि उस पार्टी में जाना उसकी ज़िंदगी की कितनी भयानक गलती साबित होने वाली। ओके ठीक है, मैं आ जाऊँगी।
اس کے لبوں سے نکلنے کی دیر تھی اجیا مسکرا پڑی۔ اگر تم نہیں آئی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ ایک بار پھر وہ سختی سے کہتی موبائل فون رکھ چکی تھی اور رائما عجیب سی کشمکش کا شکار ہوئی۔ وہ جو سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، دائم کا کمرے میں داخل ہونا نوٹ نہ کر پائی۔ میاں چلے؟ دائم نے پکارا تو وہ ہوش میں آئی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہم بس 2 منٹ میں آئی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ پکڑے بڑے بال سمیٹی چادر سر پر لیتی کمرے سے باہر نکلی۔ دائم بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ واضح اسے کھویا کھویا دیکھ سکتا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ دائم نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے سینیوں کے درمیان ہی روک کر پوچھا۔ وہ اس کی طرف پلٹی اور ایک نظر دائم کو دیکھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیو جینز میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ سالوں سے تھا۔ وہ اصل میں آج اجیا کی برتھ ڈے ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے فارم ہاؤس پارٹی پہ جاؤں، بس گرلز کی گیٹ ٹو گیدرنگ ہوگی۔ رائما کی بات پر دائم مسکرا پڑا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ جیسے حیران ہوا کہ وہ پریشان کیوں ہو رہی ہے، کیا میرا اتنی رات کو جانا ٹھیک رہے گا؟ وہ الٹا دائم سے سوال پوچھ رہی تھی، جس نے دائم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ فکر مت کرو، میری لیٹ نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، ہاسپٹل سے آتے ہو تو میں پک کر لوں گا، پھر ہم دونوں تو ساتھ ہی حویلی آ جائیں گے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دائم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اسے یقین دلایا اور رائما گہرائی سے مسکرائی تھی۔ مجھے اس ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ پر یقین ہے اور میں جانتی ہوں جب تک آپ ہیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگلے ہی پل وہ آگے بڑھتی دائم کے سینے سے لگ چکی تھی۔ دائم کو خوشی کے ساتھ سکون کا بھی احساس ہوا۔ دائم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ اس سے الگ ہوئی۔ چلو اب جلدی چلو، میرا ٹائم ہو رہا ہے، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر مجھے ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ دائم سنجیدہ ہوا تو اسباب میں سر ہلاتی اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچی اور پھر حویلی سے ہی باہر نکل گئے۔ وہ آج اجیا یونیورسٹی نہیں آئی تھی، شاید اس کی سالگرہ تھی اس وجہ سے۔ یونیورسٹی کے ساتھ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی مال آ گئی۔ اب اجیا کی سالگرہ پر جانا تھا تو اس کے لیے کچھ گفٹ بھی لینا چاہیے۔ پورے 2 گھنٹے کھپنے کے بعد اسے اپنی پسند کا ایک بیگ ملا۔ وہ تو نایابی کا شکریہ جس نے وقت رہنے سے بیگ کی فوٹو سینڈ کرتی تھی۔ اجیا کو ہینڈ بیگ بہت پسند تھے اور پھر اس کے حساب سے لینے میں کافی وقت لگ گیا۔ 6 بجے کے وقت وہ مال سے باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے دائم کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف وہ جو ہاسپٹل میں موجود تھا اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا مسکرا دیا۔ ضروری فائل اسٹڈی کرتے اس نے موبائل فون کان سے لگایا تو رائما کی سرشار سی آواز کانوں پہ پڑی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جیسے بہت بے چین تھی کہ دائم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ؟ نہ دعا نہ سلام نہ حال احوال، پہلا سوال ہی یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دائم کی پرسکون آواز سنتے وہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں بھول گئی تھی۔ اور دائم کا دل چاہا اس کی معصومیت پر صدقے واری جائے۔ کوئی بات نہیں، ہاسپٹل میں ہوں، پیشنٹس کے ساتھ گپے مار رہا ہوں۔ اس نے بات کو مذاق کا رخ دیا۔ میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں، پلیز ٹائم سے لینے آ جائیے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اچانک اس کی آواز جیسے سہمی ہوئی نکلی تھی کہ دائم کچھ پریشان ہوا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اپنے موبائل کی لوکیشن آن رکھنا اور میرے ساتھ شیئر رکھنا۔ دائم کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر اجیا کی کال آنے لگی۔ اچھا مسٹر بلیو، بعد میں بات کروں گی، اجیا کا فون آ رہا ہے۔ وہ ہڑبڑی میں کہتے فون کاٹ چکی تھی کہ دائم بس مسکرا دیا۔ اس کا مسٹر بلیو کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ دائم کی ہیزل بلیو آنکھوں کی وجہ سے اسے مسٹر بلیو کہتی تھی۔ اس نے موبائل فون کان سے لگایا تو اجیا کی چنگاڑتی آواز سنائی دی۔ تم آ رہی ہو رائما یا نہیں؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی کہ رائما کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ حوصلہ رکھو بابا، آ رہی ہوں۔ رائما کی بات سنتے اجیا اندر تک جیسے پرسکون ہو گئی تھی۔ اوکے گڈ، جلدی ملتے ہیں۔ اجیا فون کاٹ چکی تھی۔ 7 بجے کے قریب رائما اس کے فارم ہاؤس پہنچی۔ ڈرائیور انکل اسے ڈراپ کرنے کے بعد جا چکے تھے۔ ویسے بھی اسے دائم نے ہی پک کرنا تھا۔ فارم ہاؤس شہر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس نے بلیک کلر کی فراک پہن رکھی تھی، کندھوں کے گرد پرپل شارٹ اوڑھ رکھی تھی، سر پر گولڈن کلر کا حجاب تھا۔ وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے گارڈن میں ہی اجیا نظر آئی جس نے کافی اسٹائلش پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ گارڈن میں تیاریاں زور و شور پر تھی۔ گارڈن کی ایک سائڈ پر موجود دیوار کو پردے کے حساب سے ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ رائما آگے بڑھی تو اجیا بھی آگے بڑھتی اس سے گلے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر بیسٹ فرینڈ۔ رائما نے مسکرا کر سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اجیا اندر تک سرشار ہوئی۔ تمہیں بھی تباہی مبارک ہو ڈیئر رائما۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔
रायमा ने आसपास देखा। आसपास कोई भी नहीं था। क्या हुआ, अब तक कोई मेहमान नहीं आया? वो हैरान होती पूछ रही थी। अरे आ जाएंगे मेहमान, सबको मैंने 8 बजे का टाइम दिया है, सब आने वाले ही होंगे। चलो हम बातें करते हैं। वो इसे लेकर अपने साथ लाउंज में आ गई और अब वो मोबाइल पर से कुछ दिखा रही थी। वो पूरा 1 घंटा बातें करती रही। उसके बाद अजिया की काफ़ी सारी कज़न्स और क्लास फेलोज आ गए तो उसने सबके साथ रायमा का तारीफ करवाया। 11 बजे उन लोगों ने केक काटा था। सारी पार्टी अच्छी लग गई थी, लेकिन फिर एक बेचैनी थी जो रायमा के अंदर बाहर फैली हुई थी। वो एक साइड पर आकर खड़ी हुई और अब वो दाइम को मैसेज कर रही थी, आप कब तक आएंगे? मालूम नहीं क्यों, लेकिन शायद उसका वजदान बता रहा था कि आज की रात रायमा पर बहुत बारी गुजरने वाली है। चंद मिनट बाद स्क्रीन पर मैसेज जगमगाया, आ रहा हूँ। दाइम का मैसेज देख वो अंदर तक पुरसुकून हो गई थी। अचानक किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा तो रायमा की चीख निकलते निकलते रह गई। वो घबरा कर पलटी तो पीछे ही अजिया खड़ी थी। क्या हुआ, तुम इतनी खौफजदा क्यों हो गई हो? अजिया ने गहरी नज़रों से रायमा को देखते हुए सवाल पूछा। एक नज़र उसकी रायमा के हाथ में मौजूद अंगूठी तक भी गई थी। उसका दिल चाहा रायमा का हाथ ही काट डाले, लेकिन नहीं, उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग कर चुकी थी। तुमने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गई, रायमा ने वजाहत दी। तो अजिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ये लो जूस पियो। क्या तुम इतनी डल क्यों नजर आ रही हो? अजिया ने अपने हाथ में मौजूद जूस का गिलास रायमा की तरफ बढ़ाया। मुझे तुम्हारा बीपी लो लग रहा है। वो रायमा के माथे पर हाथ रखती कुछ परेशानी से बोल रही थी। रायमा बमुश्किल मुस्कुरा पाई। अजिया का तो एक्टर होना चाहिए था। रायमा का दिल वाकई घबरा रहा था, इसलिए उसने जूस का गिलास होंठों से लगा लिया और उसके जूस पीने की देर तक अजिया के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो एक नज़र सड़ता पैर रायमा को देख रही थी। माफ़ करना डियर रायमा, लेकिन मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है और मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुमने ही मजबूर किया है। उसने रायमा के हाथ में उसका मोबाइल दिखा। क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है? 2 मिनट के लिए। रायमा चौंक कर सीधी हुई। क्यों, क्या हुआ? उसके सवाल पर अजिया ने अपना मोबाइल दिखाया जिस पर डेड बॉडी बैटरी शो हो रही थी। बस मामा को बताना था कि शायद मुझे वापस आने में कुछ देर लग जाए। रायमा ने इस बात में सर हिलाया और अपना मोबाइल अजिया को पकड़ा दिया। जूस मिनट पीने के कुछ ही देर बाद रायमा को चक्कर आने लगे थे। आंखों के सामने अजीब सा अंधेरा छाने लगा। उसने वहीं गार्डन की एक साइड पर दीवार पर हाथ रख के अपने हवास काबू करने चाहे, लेकिन सारे मनाजर धुंधले हो गए थे और फिर वो चकराकर ज़मीन बोस हुई थी। उसकी ज़मीन पर गिरने की देर थी। अजिया दोबारा उसके पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ उसने रायमा के चेहरे को अपने हाथों से दबोचा। आज के बाद तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये मेरा बदला है। जो मेरा दोस्त होता है उसके साथ मैं आखिरी हद तक दोस्ती निभाती हूँ, लेकिन फिर ये अजिया दुश्मनी पर आखिरी हद तक निभाती है। फिक्र मत करो डियर रोमी, तुम्हें इस रात का कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए उन हसीन लम्हात को रिकॉर्ड करना नहीं भूलूंगी। वो आहिस्ता से रायमा के पास उसके कान पे चुपती कराई थी। उसी वक्त एक दरिंदा सिर्फ शैतान नजर आ रही थी। उसने 2 लड़कियों को इशारा किया। वो अजिया के पास आई और अब वो झुककर रायमा को उठा रही थी। उसके बाद उसे अंदर ले गई। 5 मिनट ही गुजरे थे जब दाइम की गाड़ी फार्म हाउस के अंदर आकर रुकी। दाइम यहीं गाड़ी वहीं फार्म हाउस के बाहर पार्क करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने दूर से ही रायमा को ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसे कहीं नजर न आई। इतने में उसकी नज़र अजिया तक गई, जो किसी लड़की से मुस्कुराकर कोई बात कर रही थी। उसने कदम कदम चलता वो अजिया तक आया। अजिया भी उसे देख चुकी थी। वो हेलो मिस्टर राइम। अपने बाल एक अदा से कंधे से झटकती वो मुस्कुराई थी। सालगिरह मुबारक हो। दाइम ने जबरन इसे विश किया था। रायमा नजर नहीं आ रही। उसने आसपास देखा तो अजिया ने गुस्से से मुठ्ठियां बेंच पर खुद को काबू में पाया। उसके दिल ने कहा कि एक बार उस शख्स से पूछे, क्या तुम्हें रायमा के अलावा दुनिया की कोई लड़की नजर नहीं आती? लेकिन वो खामोश रही। रायमा? दाइम ने दोबारा पूछा तो वो होश में आई। हाँ, वो वॉशरूम तक गई थी, बस आती ही होगी। दाइम ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर वो एक साइड पर जाकर खड़ा हो गया। कम से कम वो इन लड़कियों की गैदरिंग में खड़ा नहीं होना चाहता था। 2 मिनट गुजरे थे जब उसके पास अजिया आई। आपको मेरी पार्टी में आ ही गए हैं तो एक गिलास जूस पी ले। उसने जूस का गिलास दाइम के सामने रखा। दाइम ने नफ़ी में सर हिलाया। नो थैंक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो रस्मन भी हाँ ना कर सका तो अजिया के चेहरे पर गुस्से के तासुरात वाज़ेह हुए, लेकिन वो जल्दी उन तासुरात को छुपा गई। वैसे ये जूस रायमा ने भी ही बनाया है,
اس کے ہاتھ کا بھی نہیں پئیں گے؟ اس نے جیسے ایموشنلی وار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دائم کبھی بھی رائما کے ہاتھ کی چیز کے لیے انکار نہیں کرے گا، اور اس بار واقعی دائم نے جوس کا گلاس پکڑ لیا تھا۔ وہ 2 ہی گھنٹوں میں جوس کا سارا گلاس حلق میں انڈیل چکا تھا، اور بس اجیا کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ جوس پینے کے کچھ ہی سیکنڈ بعد دائم کو گھٹن ہونے لگی۔ اس نے گلاس وہیں ٹیبل پر رکھا اور جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گلے میں کوئی کھٹی چیز آ گئی ہو۔ 5 سے 10 منٹ بعد ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ آنکھوں میں خطرناک حد تک سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ اجیا تک آیا۔ ابھی تک رائما آئی کیوں نہیں ہے؟ اس نے کچھ غصے سے پوچھا۔ وہ شاید کمرے میں ہے، آ جائے، آپ کو اس کے پاس لے جاتی ہوں۔ اجیا کی بات سنتے دائم نے اپنی شرٹ کا دوسرا بٹن بھی کھول دیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اجیا کے پیچھے کمرے تک آیا۔ رائما اس کمرے میں گئی۔ میں ذرا مہمان کو سی آف کر رہا ہوں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اتنا کہتے وہ غائب ہو گئی۔ دائم نے دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میاں میاں اسے پکار رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دائم نے دروازے کے پاس موجود دیوار پر ہاتھ رکھے دیوار کو ٹٹولا، اور 2 منٹ بعد اسے کمرے کی لائٹ کے سوئچ مل گئے۔ اس نے ہاتھ مار کر ساری لائٹس آن کر دی۔ وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ واش روم تک آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو واش روم اندر سے لاک نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے اسے رائما کہیں نظر نہ آئی۔ بہت مشکل سے اپنا چکراتا سر بحال کرتے وہ واش روم سے باہر نکلنے والا تھا۔ اچانک کسی احساس کے تحت اس کی نظر واٹر ٹب تک گئی، اور اگلے ہی پل اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں کوئی تھا۔ وہ واٹر ٹب تک آیا تو پانی میں ڈوبی پڑی تھی۔ دائم کا سر جو پہلے ہی چکرا رہا تھا مزید چکرانے لگا۔ میاں، وہ چیخا تھا۔ وہ کندھے تک پانی میں ڈوبی پڑی تھی۔ دائم نے بہت مشکل سے اپنا چکراتا سر بحال کیا اور اسے واٹر ٹب سے باہر نکالا۔ اسے لے کر واش روم سے باہر نکلا اور پھر جلدی سے اپنے کمرے سے موجود بیڈ پر لٹایا، اور اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ میاں میاں، آنکھیں کھولو۔ کتنی ہی دیر کے بعد اس نے اپنی مندی آنکھیں کھولی۔ رائما نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے موجود کسی شخص کو دیکھنا چاہا، لیکن سارے مناظر دھندلے تھے۔ وہ اس شخص کا چہرہ ٹھیک سے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کانوں میں آواز جا رہی تھی لیکن وہ آواز کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی، اور یہ سب ان ڈرگس کی وجہ سے ہو رہا تھا جو اجیا نے اسے جوس میں ملا کر دی تھی۔ رائم، اس کے لبوں پر ایک سرگوشی نکلی، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دائمہ بار بار اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اور اس کے آدھے سے زیادہ بال بھیگ گئے تھے۔ وہ خود کندھوں تک ساری بھیگی پڑی تھی۔ وہ بے حس و حرکت تھی، اور دائم کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ میاں، اس نے اس بار تڑپتے اسے پکارا۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا تو کبھی اس کے دونوں گالوں پر بوسے دے رہا تھا، کبھی اس کے گلے میں لب رکھ رہا تھا، لیکن دائمہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ آج کھلے دروازے میں سے اجیا نے تھوڑا سا منظر اپنے موبائل کے کیمرہ میں ریکارڈ کیا، اور پھر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ اتنی خاموشی سے بند کرتی فارم ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ آج کی آخری رات تم دونوں کے نام۔ اس رات کے بعد تم دونوں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرو کہ کیا حد نہیں۔ اجیا کی ساری دوستیں فارم ہاؤس سے باہر جا چکی تھی۔ فارم ہاؤس بالکل سنسان ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک دائم اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور اس ڈرگس نے دائم کا دماغ مفلوج کر دیا۔ وہ اسے بجائے ہاسپٹل لے کر جانے کے بعد اس کی آنکھوں کو کھلی دیکھنے کے لیے تڑپتا جا رہا تھا۔ اجیا نے کافی ہائی ڈرگس دائم کے جوس میں ملا کر اسے دیا تھا۔ اچانک ہی دائم کے اندر آگ لگ پڑی۔ وہ رائما کو وہیں چھوڑتا ہوا کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اسے شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ حلق تک خشک ہو رہا تھا، جیسے اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی۔ آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے۔ وہ دوبارہ بیڈ تک آیا۔ میاں، تمہیں سمجھ نہیں آتی، آنکھیں کھولو۔ وہ رائما کو دونوں کندھوں سے پکڑے اسے جن چھوڑنے لگا، پاگلوں کی طرح چیخا۔ اس کے لہجے میں سارے جہان کا غصہ تھا، لیکن رائما آنکھیں کہاں کھول رہی تھی۔ تو تم ایسے میری بات نہیں مانو گی، وہ ایک ایک لفظ غصے سے کہتے رائما کے ہونٹوں پہ چکا۔ اس کے شدید ترین عمل پر وہ رائما کے بے جان جسم میں ہلکی سی جمش ہوئی تھی۔ دائم کے لبوں کا لمس اس کے گلے اور گردن پر بکھر رہا تھا۔ وہ بے ہوشی سے ہلکی سی ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ دائم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے نیم بے ہوشی وجود میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی، اور دائم بھی اس ڈرگس کی ہیوی نشے کی طاقت میں اب اپنے ہوش میں کہاں رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر رائما پر حاوی ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، اور رائما کے لبوں پر ایک فریاد نکلی تھی۔ وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔
लेकिन मुकम्मल तौर पर दाइम में काबू में आ चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद दाइम होश में आया। उसने बहुत मुश्किल से अपना चकराता सर पकड़ा और तकलीफ से अपने सामने का मंजर देखा कि वो क्या कर रहा था। वो कैसे राइमा को तकलीफ दे सकता है। वो फ़ौरन से पीछे हट गया, लेकिन चकराते सर को बहाल करने के चक्कर में वो वहीं बेड पर गिरा था और होशो हवास से बेगाना हुआ। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। इतने हाई डोज के बावजूद भी उसकी आंखें खुल गई थी। उसने देखा तो अभी नए दिन की रोशनी फूटनी शुरू हुई थी। उसकी नज़र बेड के दाएं जाने की जहाँ राइमा बेहोश पड़ी थी और दाइम का दिमाग लम्हों में घूमा। वो फ़ौरन उठकर बैठा और एक नज़र अपने आप को देखा और उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। उसके दिमाग में अजीब सी सोच आई। वो राइमा के पास हुआ और नरमी से उसका चेहरा थिपकाया। मियाँ, मुझे बहुत तेज़ बुखार था और दाइम को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि उसने राइमा को तकलीफ दी थी। बस वही सोच रहा था। उसने अगले ही पल कंबल हटाते देखा तो राइमा बिल्कुल ठीक थी। उसके कपड़े अब खुशक हो गए थे। उसे शदीद सर्दी से बुखार हुआ था, लेकिन उसने राइमा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, जिसे देखते उसे सुकून मिला। उसने याद करने की कोशिश की कि कल रात क्या हुआ। वो वहीं कमरे में चक्कर काटने लगा। बहुत देर के बाद उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ और रात की एक एक चीज़ के सामने नुमाया हुई। वो जिया की सारी गेम समझ गया। उसके अंदर जैसे लावा सा फटने लगा। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो बेड तक आया, राइमा के बेहोश वजूद को अपनी बाहों में लिए वो वहाँ से बाहर निकला। उसने देखा फार्म हाउस का सारा खाली था। वो राइमा को लेकर वहाँ से बाहर निकल आया। अगले चंद घंटों बाद उसकी गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी। वो सीधा उसके कमरे में लाया। उसे बेड पर लिटाने के बाद उसने बिना किसी को बताए बस एक मुलाजमा को राइमा का ख्याल रखने के लिए कहा। फिलहाल वो किसी को नहीं बताना चाहता था कि वहाँ से बाहर ले आया है। उसके हाथ में इस वक्त राइमा का मोबाइल था। उसके हाथ तेज़ी से अजिया का नंबर मिला रहे थे। उसने अजिया का नंबर डायल किया और अजिया ने हैरानी से अपने मोबाइल पर राइमा की आने वाली कॉल देखी। वो कल रात ही राइमा का मोबाइल वहीं कमरे में फेंक आई थी। उसके ख्याल से अब तक तो उसके प्लान पर अमल हो जाना चाहिए था। मैं दाइम बात कर रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? अजिया की तो जैसे बांझी खिल गई। ओके, मैं आ जाऊँगी। वो तो जैसे अंदर तक मसरूर हो गई। तो दाइम भी खुलकर मुस्कुराया। लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम आ जाना। उस बात में सर हिलाती मोबाइल बंद कर चुकी थी। ये रात के आखिरी पहरों का मंजर था। राइमा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। वो राइमा से मिलकर ही आया था। उसको बुखार की वजह से कुछ याद नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि अजिया ने उसके साथ क्या किया और ना ही दाइम उसे कुछ बताने का इरादा रखता था कि उसके एतबार को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर उसे पता चल जाता कि अजिया दोस्ती के रूप में उसके लिए इतना सब कुछ कर चुकी है तो राइमा का एतबार उठ जाता और उसका एतबार नहीं तोड़ना चाहता था। वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। अजिया की गाड़ी उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा दाइम, तुमने मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया है, मुस्कुराती हुई कह रही थी। दाइम ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी की टेक छोड़ी और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। वो काफ़ी संजीदा था, लेकिन अजिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ओके, पूछो। उसने खुले दिल से इजाज़त थी। तुमने हमने दोनों को ड्रग्स क्यों दी थी? उसकी इस सवाल पर अजिया के चेहरे का खून उचड़ गया। ये मत समझना मुझे कुछ याद नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। तुमने मुझे क्या बच्चा समझ रखा है? दाइम की आंखों में खून था, लेकिन फिर बहुत नरमी से बात कर रहा था। अजिया के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे किसी ने नोच डाली। वो तलख हुई थी। तो क्या करती? हर वक्त तुम उस राइमा के गुन गाते हो। तुम्हें एक बार भी मैं नजर न आई या फिर मेरी मोहब्बत नजर न आई। मैं तुमसे पागलों की हद तक इश्क करती हूँ दाइम। वो चीख पड़ी और दाइम के जिस्म में खून का उबाल उतरा। अच्छा, मुझसे मोहब्बत करती हो? अजिया ने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया। दाइम ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो एक छोटी सी गोली थी, बिल्कुल कैप्सूल जैसी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इतना कहते साथ दाइम ने उसकी डिब्बी में मौजूद वो कैप्सूल अजिया की तरफ बढ़ाया। अगर तुम मुझसे वाकई इश्क, मोहब्बत, वॉट एवर जो भी करती हो, तुम ये खाकर साबित करना होगा, फिर शायद मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूं। दाइम की आंखों में मुस्कुराहट थी और अजिया ने कुछ हैरत से उस कैप्सूल को देखा। ये क्या है? उसे उल्ट पुल्ट किए पूछा तो दाइम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। फिक्र मत करो, जहर नहीं है, बस तुम्हारा एक टेस्ट है। हो सकता है इसमें ग्लूकोज हो। खैर, तुम्हारी मर्जी है। टेस्ट पास करोगी तो शायद मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूं। दाइम काफ़ी संजीदा था। अजिया के लोगों को एक शैतानी मुस्कुराहट ने छुआ। तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ और ये सब तुम देख ही चुकी हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। इतना कहते साथ वो कैप्सूल को निगल चुकी थी तो दाइम के लोगों को एक मुस्कुराहट नहीं हुआ। उसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक थी। अगर तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती थी तो एक बार मुझे कहती, खुद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करता। लेकिन तुमने इस तरह राइमा के साथ ये सब क्यों किया? वो जैसे उस सवाल को जानने के लिए बेचैन था। अजिया आवाज़ को एक बार जो चीज़ पसंद आ जाए उस चीज़ को हासिल करके रहती है और राइमा ने मेरी पसंद पर नज़र रखी थी, इसलिए मुझे इसे सज़ा देनी थी। इतना कहते साथ अजिया सांस लेने में तकलीफ होने लगी
اور دائم کی آنکھوں میں سرخی تیز ہوئی۔ وہ تڑپتی ہوئی زمین پر کھڑی اور بے حد حیرانی سے دائم کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے کیا کھلایا ہے؟ وہ اپنا گلا مسلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دائم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، بس میں نے بھی تمہیں عشق کی مار ماری ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری رائمہ کو تکلیف دو گی اور میں دیکھتا رہ جاؤں گا؟ وہ تو شکر ہے مجھے کچھ ہوش تھی جو میں خود کو روک پایا، ورنہ تمہاری ڈرگس نے تو کام تمام کر دیا تھا۔ اور میں آج کے بعد اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم جیسی لڑکی میری بیوی کی زندگی میں نہ آئے۔ اور لفظ بیوی پر اذیت سن رہے گی۔ فکر مت کرو، جو میں نے تمہیں کیپسول دیا سے تم ایسی موت مرو گی کہ تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی، بہت پرسکون موت آئے گی۔ اور تمہیں مرنے سے پہلے ایک بہت خاص بات بتاؤں تو سنو۔ دائم کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ جیا کو کچا چبا جائے۔ رائمہ میری بیوی ہے اور ہمارا سالوں پہلے نکاح ہو چکا تھا، اور یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اجیا کے وجود میں شراروں کی مانند پھوٹ پڑے۔ اس کے لبوں سے خون نکلا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے دائم، وہ تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ تو دائم کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم دوستی میں میری بیوی کی جان لے سکتی ہو، تو اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہو، تم اس کی عزت نفس کو تباہ کر سکتی ہو، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ تم بھی جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں، اور یہ دائم ازلان شاہ کیا چیز ہے۔ خیر اب تم جان گئی ہوگی۔ ہیپی جرنی۔ اتنا کیسے تھا وہ زمین سے اٹھا اور چند ہی پلوں کا کھیل تھا۔ اجیا کے لبوں سے دوسری بار خون نکلا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی زمین پر گری۔ اس کا وجود ساکت رہ گیا۔ وہ مر چکی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر گارڈ کھڑے دائم کے ان اشارہ کیا اور گارڈ اشارہ سمجھتے اس تک پہنچے۔ دائم اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی وہاں سے لے جا چکا تھا۔ اگلی صبح سارے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ مشہور بزنس مین عباس صاحب کی اکلوتی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ اور رائمہ سن ہوتی ذہن کے ساتھ اسکرین کو دیکھ رہی تھی جب دائم اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ دائم کو دیکھتے وہ سارے ضبط کھولتی اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ اور دائم نے ایک گہری سانس لی۔ وہ انجان تھی، اس کا انجان رہنا ہی بہتر تھا۔ اگر وہ جانتے تھی اجیا دوستی کے لباڑے میں ایک بھیڑیا تھی تو رائمہ اس کے زخم سے کبھی بھی نہ بڑھ سکتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مسٹر بلیو؟ وہ بھی حیرانی سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تو دائم نے اسے اپنے سینے سے شدت سے بیچتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ دیا۔ ہر انسان نے ایک دن مرنا ہی ہے میری جان۔ وہ اس کی سینے سے لگی کھل کر روئی تھی۔ اس نے اجیا کو اپنی بہن سمجھا تھا اور دائم اسے کھل کر رونے دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ رونا زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ اپنی دوست کی ڈارک سائڈ جان جاتی تو تکلیف سے وہ زخم کبھی نہ رائمہ نہ بھول پاتی۔ وہ ساری زندگی اس تکلیف میں جلتی، اور دائم نے اسے اس تکلیف سے جلنے کے لیے بچایا تھا۔ لیکن وہ بھی شاہ خاندان کا خون تھا، اور شاہ خاندان جو اپنی عورتوں پر ایک بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے، تو اس نے بھی نہیں کیا۔ اس نے بھی انتقام لیا۔ ایسا انتقام کوئی جان تک نہ پایا۔ اس نے انتقام تو کیسے لیا؟ کچھ مہینوں بعد ہی دائم نے رائمہ سے شادی کر لی۔ وہ مزید رائمہ کو خود سے دور رکھ کے اس کی زندگی انسیکیور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس رہے تاکہ اس کی حفاظت کر سکے۔ کافی مہینوں بعد اجیا کی موت سے سنبھلی تھی۔ وہ راز اس کی زندگی میں ایک راز ہی رہا۔ اس کے شوہر نے اس کی حفاظت اس طرح کی تھی کہ وہ کبھی یہ جان نہ پائی کہ اسے تباہ کرنے کی کوشش کسی اور نے نہیں کی۔ اگر کی بھی تھی تو کس نے کی تھی؟ کچھ کہانیوں میں انجان رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ رشتوں کی تلخ حقیقت انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ اور بس دائم نے اسے اس تلخ حقیقت سے دور رکھا تھا۔ بے شک وہ بہترین ہمسفر تھا، اور فریحہ کا اندازہ بہت بہتر تھا۔ اس کی بیٹی کو خدا نے ایک بہترین ہمسفر سے نوازا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ رائمہ کبھی انجان نہیں تھی۔ اس کے موبائل میں آج بھی وہ ساری تصویریں تھیں جو اجیا نے اس رات رائمہ کے موبائل میں کی تھی۔ اس رات رائمہ کا جوس پینا اور اجیا کا اس کا موبائل مانگنا، وہ سب کچھ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ان سب کے پیچھے اجیا کا ہی ہاتھ ہے، مگر اجیا مری کیسے وہ یہ بات کبھی نہ جان پائی۔ لیکن یہ راز وہ اپنے دل میں دفن کر کے اس نے کبھی بھی دائم کو یہ بات پتہ نہیں چلنے دی کہ وہ ساری سچائی جانتی ہے۔ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسے دوستی میں دھوکہ دیا گیا تھا، اور اس نے وہ دھوکہ کسی ضبط سے برداشت کیا تھا، وہی جانتی تھی۔ اس نے ہمیشہ اجیا کو اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر چاہا تھا، لیکن اسے دوستی میں دھوکہ دیا گیا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کیا کبھی کوئی لڑکی کسی دوسری لڑکی کی دوست ہو سکتی ہے؟ اس نے اتنے سال دوستی میں ضائع کر دیے۔ کاش کبھی اجیا اس کی زندگی میں آئے ہی نہ ہوتی۔ وہ تو شکر تھا کہ اجیا نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تباہ نہ ہوئی۔ وہ بس اجیا کو بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، جس میں دائم نے اس کا مکمل طور پر ساتھ دیا تھا۔ وہ دائم کے ساتھ بہت خوش تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے خدا نے ایک بہترین ہمسفر سے نوازا۔